participants. First of all, I thank Professor Joshi to give me this opportunity, and it has been my pleasure to be with you on this in this morning session. I would like to discuss something on how to write a research paper. What happens actually when we start research? We are really confused, and we do not know where to start, and we do not know how to keep the records, how to keep the data, and how to analyze the data, because it has a number of stages in writing and going through a research. First of all, we'll go through a research for a research data, because unless we have a data, and before going for the field work or for analyzing the data or collecting the data, we will have to see what is happening in that particular field. That is, it means we should know how we are going to do a research, and how we are starting a research. Because unless you select a topic or an area of research or a field on which you want to have a research, or you want to start a research. Kurt Lewin has said, no research without action, no action without research. So he emphasizes always we have to be active, and we should go for actions, different actions in the research. Similarly, Albert Einstein has said, if we knew what we were doing, it would not be called research, would it? It means if we know something in our area and we are still repeating the same thing, it means we have the knowledge of that particular aspect or that particular thing. If we are going to do it again, it is not the research. So actually what happens, a research paper, actually it is not simply writing a research paper. There are so many things involved here, and before writing a research paper, we have to go through a number of things. Simply a research paper, in fact, it is a kind of academic writing, or a writing which is based on academic aspect or academics, because it gives us in-depth analysis. That is, we can say research means we have gone thoroughly into this topic. कोई भी रिसर्च अगर हम करते हैं तो सबसे पहली चीज तो यह है कि हमें पता होना चाहिए कि हम क्या चीज, किस तरह की चीज को एनालाइज करना चाह रहे हैं. इसकी नॉलेज इतना होना चाहिए सिर्फ कि क्या चीज हम करने जा रहे हैं, लेकिन क्या इसमें हो चुका है और क्या हम उसी चीज जो करने जा रहे हैं, तो वो रिसर्च नहीं है. तो एक तरह की एकेडमिक राइटिंग है, जो रिसर्च हमने करी उसको हम लिखने जा रहे हैं उस केस में. सो व्हाट हैपेंस हियर, दिस एकेडमिक राइटिंग और राइटिंग अ रिसर्च पेपर इज एक्चुअली गिव्स अस इन डेप्थ एनालिसिस, बहुत डिटेल्ड एनालिसिस हमको बताता है. दूसरा, इट आल्सो गिव्स अस इवैल्यूएशन, इट प्रोवाइड्स अस इवैल्यूएशन, दैट इज वी आर इवैल्यूएटिंग द we can say the data we have gone through the data collection, during the data collection. And similarly, we can say we can interpret a single topic based on empirical evidence. Empirical evidence means hypothetical, हमने कोई चीज दिमाग में सोची है कि इस चीज को हम इस तरह से एनालिसिस करें या ऐसा डेटा लें, इस तरह से करें, इसमें इस फील्ड में इस तरह का काम हुआ है और हम इस तरह का करना चाहते हैं, तो वो रिसर्च कहलाएगी. तो उस केस में जो एविडेंस जो हमारे पास एम्पिरिकल अभी है नहीं, मतलब एक हमने दिमाग में आइडिया बनाया है कि ऐसा एविडेंस आएगा, तो उसको हम कह सकते हैं. और रिसर्च पेपर इज सिमिलर टू एन एनालिटिकल एसे. बेसिकली व्हाट हैपेंस, रिसर्च पेपर इज ऑलवेज बेस्ड ऑन एनालिसिस. इफ द डेटा हैज नॉट बीन एनालाइज्ड, कोई भी डेटा आपके पास है उसको आपने एनालाइज नहीं किया, तो वो रिसर्च पेपर नहीं है. जबकि रिसर्च पेपर क्या करता है, कहने का मतलब है रिसर्च पेपर ऑलवेज, it can be said to be a research paper, it can be designated as a research paper only when we use the statistical data in it. Similarly, we discuss the pre-existing research. Whatever has been done in that particular area has to be discussed. This is very important. And naturally, when we are going for publishing a research paper, writing a paper for publishing in any journal, so we'll have to follow
say citation code of that particular publication or journal. This is very important. This way we can say, we have to see how we can say we can write a paper unless we go for its citation. Now the question is, the question is raised, what should be the length of a paper? We should know different journals, publications, or different kinds of periodicals which publish research papers, research reports, short research, or we can say letter to the editor. Sometimes also they are also published by some journals, letters to the editor. So they are also part of small note on research. So normally the length of the research paper also depends on the type of the topic, what kind of topic we have taken. If the topic demands more more length, it may be lengthier, somewhat lengthier. If it demands not so much content, it means it has to be shorter in length. So generally research papers are 4,000 to 6,000 words. But in some of the journals, you can say they say the paper should not exceed 8,000 words, 6,000 words. It depends on the policy of that particular research paper also. Because when you are going to publish a research paper, you will have also to think. You will have to also concentrate on the aspect that what kind of research paper this journal publishes. So on the basis of that, we can write a research paper for that particular paper. So normally we can say these are up to 4,000 to 6,000 words. But the short research papers usually are very shorter length. They are usually around 2,000 words normally. And long papers are usually up to, I was saying earlier, it is up to 10,000 words, around 10,000 words are longer papers. But I know, I told you just because it depends on the policy of the journal also. Different journals have got different types of policies and different, we can say, types of journals, because journals are also are of specific nature. Sometimes some journals are of specific nature, and sometimes some journals are of wide nature. We can say, suppose we say research journal, we can say political system, or we can say international relations. So it means it has a very wide scope. When we say on East Asia, it means we are concerning the East Asia only. Suppose we say it is the research journal of botany, it means we are concerning with the botany. It is a specific. I told you just specific means, suppose we are saying it is based on economic policy. A particular economic policy. It can be based on a part of botany, like we can say it can be based on plant ecology. Similarly, we can say in case of zoology, it may be, suppose the journal deals with the physiology, it means it is specific to physiology. So this depends on the type of the work and type of the journal where you are going to publish, and before that publishing, you are going to write it. The first aspect here is assignment. Assignment means a topic. Basically broadly a topic ही है. तो असाइनमेंट के कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं जो जरूरी होती हैं, जैसे हमने डिस्कस किया अभी कि लेंथ उसकी कितनी है. तो एक लेंथ दिमाग में हमें रखनी पड़ेगी कि अब कैसे लिखेंगे. अब कैसे लिखेंगे, इससे पहले बहुत सारी चीजें आती है, हम डिस्कस करेंगे बाद में. तो लेंथ उसकी हमें ध्यान में रखनी है. और फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट मैंने आपको जस्ट अभी बताया था कि उसके साइटेशंस और उसकी जो फॉर्मेटिंग रिक्वायरमेंट्स है, हाउ दीज आर डन, और साइटेशन स्टाइल क्या है. फॉर्मेटिंग मीन्स पैराग्राफ कैसे होंगे, सिंगल स्पेसिंग होगी, डबल स्पेसिंग होगी, 1.5 स्पेसिंग होगी, इंडेंटेशंस कैसे होंगे, जो सभी लोग आजकल कंप्यूटर से जानते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर सभी जानते हैं, वर्ड हो चाहे कोई और सॉफ्टवेयर हो. सो इसमें इंडेंटेशंस कैसे हमें लेने हैं वो भी इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से. तो असाइनमेंट अगर आप जानना चाहते हैं लिखने का, तो कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट ये वाले हैं. अब दूसरी चीज आती है कि रिसर्च पेपर हमें कैसे लिखना है. लेकिन इससे पहले क्या आएगा कि हमें रिसर्च कैसे करनी है, कैसे हमें काम करना है. तो कोई भी टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो सेलेक्टिंग अ टॉपिक एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव, ये स्टेप्स है. ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं हमको, हमारे उद्देश्य क्या है उस काम को करने के जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, और फिर उसको छापने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं, लिखने और फिर उसके बाद छापने. फिर आउटलाइन उसकी बनानी है, उसकी क्रिएट एन आउटलाइन, गेट योर डेटा रेडी, वी हैव टू प्रिपेयर द डेटा एंड दिस डेटा हैज टू बी केप्ट ready for analysis. Then the first of a draft we are going to prepare, this is called the first draft. So we have to organize this first draft. How will you organize?
there are specific. I told you some technical requirements or specifications are there. On the basis of these requirements, we can organize the first draft. Then, what is the structure of a scientific paper? How many sections, how many parts, and how many, we can say, subtitles and titles should be in a scientific paper. Then, there is how to select a journal. Then, how to submit the research paper for publication in a journal. Then, how to go for its revision. कोई भी पेपर अगर हम लिखते हैं तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि हम पहले उसको टॉपिक को डिसाइड करें, छांटे पहले टॉपिक क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स क्या होना चाहिए, इसके उद्देश्य क्या होंगे, इसकी आउटलाइन हम कैसे बनाएंगे, इसकी रूपरेखा कह सकते हैं, और डेटा को हम रेडी रखेंगे, जो भी हमारे पास डेटा है, पहला ड्राफ्ट कैसे उसका तैयार होगा, और साइंटिफिक पेपर के कितने हिस्से होते हैं, क्या क्या उसके भाग होते हैं, और फिर कौन से जर्नल में भेजना है, इसकी सिलेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, और कैसे उसको सबमिट करेंगे। अगर पेपर आपके पास रिवाइज होने आता है या कुछ कमेंट्स आते हैं आपके पास, तो उसको रिवाइज करके भेजते हैं, तो उसको हम कहते हैं रिवीजन ऑफ द पेपर। अब पहली चीज आती है सेलेक्टिंग अ टॉपिक एंड डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहली चीज ये है कि कोई भी टॉपिक जो है वो बहुत जनरल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनरल होने का मतलब है हमें उसकी लिमिटेशन नहीं पता होंगी कि हमें क्या करना है इसमें, और कहां से स्टार्ट करना है उस वर्क को और कहां खत्म करना है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, कोई जनरल टॉपिक होगा। और ऑलरेडी कई सारे जनरल टॉपिक्स ऐसे होते हैं विच हैव ऑलरेडी बीन इवैल्यूएटेड एंड रिसर्च्ड अपॉन बाय अर्लियर वर्कर्स, वो टॉपिक हमें नहीं लेना चाहिए। सो वी शुड सेलेक्ट अ न्यू टॉपिक। नॉर्मली इट कैन बी अ न्यू स्टडी, इट कैन बी अ कॉम्पिटिटिव स्टडी, और इट कैन बी अ सिंथेसिस। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसी स्टडी हो जो बिल्कुल नहीं हो, जो नहीं हुई है आज तक, या अगर उस तरह की स्टडी हुई है तो कुछ सारी स्टडी को हम कॉम्पिटिटिव स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ रिसर्च पेपर आजकल ऐसे भी आते हैं जिनको हम रिव्यू टाइप कहते हैं। रिव्यू टाइप में भी बेसिकली कुछ बहुत कंपैरेटिव स्टडी भी होती है, या कहाँ कहाँ लोगों ने किस फील्ड में उस एरिया में काम किया है। और सिंथेसिस का मतलब होता है जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हम सिंथेसाइज करते हैं, उसको देखते हैं, और वो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं सारे के सारे उस बाद में। तो ये चीज जरूरी है टॉपिक को छांटते वक्त, या टॉपिक को जो हमें सेलेक्ट करना है उस वक्त ये चीजें हमें ध्यान में रखनी जरूरी है कि खाली टॉपिक सेलेक्ट करना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसको आगे तक सोचना पड़ेगा। we'll have to think on it, on its we can say its consequences of its this study, and the process, how will present it, and how will go for its publication. तो जनरल टॉपिक मैंने बताया था आपको, जनरल टॉपिक वो नहीं होना चाहिए, we should avoid it. Selection would vary according to the scientific discipline. अब साइंस का हो या ह्यूमैनिटीज का हो, दोनों में हो सकता है ये। तो जो भी डिसिप्लिन आपका है, यानी जो भी विषय आपका है, चाहे वो हिंदी है, चाहे पॉलिटिकल साइंस है, चाहे वो फिजिक्स है या मैथमेटिक्स है, सब में आपको सिलेक्शन उस विषय के या उस सब्जेक्ट के हिसाब से करना है। लेकिन ये इसीलिए कह सकते हैं कि सिलेक्शन सब में कोई मापदंड फिक्स नहीं है। देयर आर नो स्टैंडर्ड वी कैन से things on the basis of which we can select a topic or we can define a topic. This is very difficult. It may be something in Hindi, it may be something in commerce, it may be something in basic sciences, and it may be different types of topics in applied sciences or applied things, applied disciplines. दूसरी चीज, the publication जो आप करने जा रहे हैं या लिखने जा रहे हैं वो रीडरशिप को सूट करनी चाहिए। मैं साइंस का एग्जांपल है, साइंस के स्टूडेंट कई सारे बैठे होंगे। नेचर सबसे बड़ा जर्नल माना जाता है साइंस में, इंग्लैंड से छपता है जो, तो उसमें क्या है, नेचर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि रीडरशिप, वो सभी में है। ये नेचर वाला तो सीधे लिखता है, पेपर लोग भेजते हैं उसमें, नॉर्मली पब्लिकेशन बहुत टफ होता है, छपते ही नहीं लोगों के, बहुत ही कम लोगों के पेपर उसमें छपे हुए होते हैं, पर्टिकुलरली हमारे कंट्री से या हम लोगों के सब्जेक्ट से। तो होता क्या है कि वो रीडरशिप, यानी उसकी जो नेचर की जो रीडरशिप है या उस जर्नल की जो रीडरशिप है उसको सूट करना चाहिए। यानी ये तो उसके उसमें इट मस्ट इंक्लूड विद इन इट्स पैरामीटर्स एंड विद इन द पैरामीटर्स that readers would be benefited, they would understand it and they would get benefited by your study or by your research paper. So this is very important. This is called suiting the readership of a journal. Then similarly we can say select after studying at least 2 similar research on the subject. सबसे पहले what you will do, you will go for similar researches. उसमें जो सिमिलर जो कम से कम 2 तरह की स्टडी हम उसमें देखी, 2 या 3 तरह की या 4 तरह की स्टडी हमने देखी कि उसमें किस तरह की रिसर्च हुई है,
उनको हम देख के फिर अपना टॉपिक हम डिसाइड करेंगे कि इसमें नई तरह की रिसर्च क्या हो सकती है उससे रिलेटेड सब्जेक्ट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. So selection of the topic or selection of the we can say synopsis of your work, that is very important, because this will reflect everything we can say during the study, during the literature survey, during the analysis, or what methods you will use during your study. अब methods में देखिए, methods तो बहुत तरह के होते हैं, अभी बाद में आएंगे उस पर. तो 2-3 तरह के स्टडीज को हम पहले देखेंगे आसपास में कि क्या किस तरह की स्टडी दुनिया में या हमारी कंट्री में या हमारे एरिया में हुई है, और उसके हिसाब से अपना टॉपिक हम सेलेक्ट करेंगे. दूसरा, ऑब्जेक्टिव. टॉपिक तो हमने सेलेक्ट किया, लेकिन उसमें उद्देश्य हमारे क्या थे वो बहुत जरूरी है उनको परिभाषित करना शुरू में. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिफाइन क्लियर ऑब्जेक्टिव्स व्हाइल सेलेक्टिंग अ टॉपिक. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो टॉपिक सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई जनरल टॉपिक नहीं होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए उस स्टडी के लिए, उस सब्जेक्ट के लिए. अब जर्नल की बात तो बाद में आएगी, लेकिन किस जर्नल को हमको भेजना है तो वो दूसरी चीज है. लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत हमें ज्यादा लिखने से क्लियर कट होना चाहिए. लेकिन ऑब्जेक्टिव में एक बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. कई लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है, तो ऑब्जेक्टिव लिखते हैं अपने सिनॉप्सिस में या रिसर्च में या किसी प्रोजेक्ट में. क्या करते हैं कि वो करीब 9-10 ऑब्जेक्टिव उसमें बना देते हैं, 8-7-8-9-10 ऑब्जेक्टिव. सो दिस इज नॉट गुड, वी कैन से, अनलेस यू स्पेसिफाई ऑन we can say some specific objectives. Objectives ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3-4 objectives sufficient होते हैं किसी भी वर्क को करने के लिए या किसी भी रिसर्च को शुरू करने के लिए. Objectives कभी भी synopsis अगर आपने सुना होगा, you might have heard when synopsis of PhD work are presented before the experts. So first of all they go for 2 things. They study what is the topic of research, यानी what is the title of research. Then they see what are the objectives. Objectives क्या लिए हैं इन्होंने, ये टॉपिक ये था, ऑब्जेक्टिव क्या लिए हैं. सबसे पहले इसी को एक्सपर्ट्स देखते हैं. तो इसी में जो है सुपरवाइजर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इसी चीज को सबसे पहले ध्यान में रखते हैं. और कई बार मैंने देखा है ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपर ना होने की वजह से सिनॉप्सिस रिजेक्ट हो जाती है या मॉडिफाई करने को कहा जाता है कि बिकॉज योर ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट क्लियर. कभी कभी मैंने ये भी देखा है, आई हैव सीन दैट सम रिसर्च डिग्री कमिटीज व्हाट दे से, सपोज यू हैव पुट 7 or 8 objectives, they say it will be difficult to cover so many objectives. So they suggest, the research degree committee experts, what they do, they suggest that you delete your objective number 6, 7 and 8 or 9, whatever they are, whatever number is, higher number is there. If they are not, if they are access to the research work, and moreover they are not relevant to your topic, that is your title or topic of your study, अगर relevant नहीं है तो भी हटाने जरूरी है वो. दूसरा, ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा, ये नहीं कि आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके आपने यू हैव रिटन द ऑब्जेक्टिव्स. दिस इज नॉट द वे. So they must be few and they must be specific to your study, and they must include, they must be covered when your these objectives should cover your title or study or your topic. This is very important. तो इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बेस पर हमारी स्टडी होती है. हम उसको आउटलाइन बनाते हैं उसके बेसिकली. तो आउटलाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वी क्रिएट एन आउटलाइन एंड वी क्रिएट एन आउटलाइन. आउटलाइन का मतलब यह है कि हाउ वी शैल, व्हाट विल बी द स्टेप्स एंड सब टॉपिक्स इन द स्टडीज. इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स क्या होंगे, वो एक तरह से कह सकते हैं, वो भी हेडिंग्स होंगे उसके इंपॉर्टेंट, और जितने भी ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनके ऊपर बेस्ड होना. कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा ना हो कि जो आपने आउटलाइन बनाई है उसमें छूट जाए. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी विद इन द आउटलाइन ऑफ योर प्रपोज्ड रिसर्च. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. अब इससे पहले क्या होता है, रिसर्च शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ पता होना चाहिए कि हाउ वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गैदर द प्रीलिमिनरी रिसर्च. Preliminary means the research, the information which is required before conducting the actual research or actual research on the topic you have. This is very important. तो 2 तरह के सोर्सेज हमारे पास होते हैं प्रीलिमिनरी रिसर्च में गैदर करते हैं. या वन इज कॉल्ड प्राइमरी सोर्सेज और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सोर्सेज. तो प्राइमरी सोर्सेज तो बेसिकली दे आर फर्स्ट हैंड अकाउंट्स. फर्स्ट हैंड अकाउंट्स का मतलब
बिल्कुल जो इनिशियल अकाउंट्स हैं, जो ओरिजिनल वर्क उसमें हुआ होगा, यानी जैसे किसी ने पेपर छापे हैं या ऑटोबायोग्राफी छापी है, सो ये इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है सेकेंडरी रिसोर्सेज में रिव्यूज होते हैं, बेसिकली रिव्यूज। सेकेंड हैंड बायोग्राफीज का मतलब हम कह सकते हैं उनको सिंपली वी कैन से बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी। जैसे किसी ऑथर के, कोई ऑथर अपने बारे में लिखता है, वी कॉल इट ऑटोबायोग्राफी। व्हेन द information about an author or life history of that particular author is written by someone else, तो उसको हम कहते हैं बायोग्राफी। तो वो सेकंड दूसरे आदमी ने लिखी है बायोग्राफी, वो बायोग्राफी कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी नहीं कहेंगे उसको। व्हेन इट इज नॉट रिटन बाय द, इफ आई राइट अबाउट माय एक्सपीरियंसेस, माय लाइफ, अबाउट माय एनवायरनमेंट, अबाउट माय एवरीथिंग which I went through, so this will be called an autobiography. Naturally this will be written by me, इसका मतलब ही है ऑटो। सेकेंडरी सोर्सेज जो होते हैं वो क्रिटिकल रिव्यूज होते हैं, तो वो भी हमें देखने पड़ते हैं किसी भी रिसर्च को स्टार्ट करने के लिए, हमें इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए। अब थीसिस का एक स्टेटमेंट होता है विच वी कॉल थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट एक्चुअली इट इज द फर्स्ट सेंटेंस इन योर पेपर, और एब्स्ट्रैक्ट में भी हो सकता है या इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हो सकता है। इससे क्या होता है, जो थीसिस का स्टेटमेंट है या पेपर का जो स्टेटमेंट है, थीसिस में भी है, पीएचडी थीसिस में भी यही लागू होता है, रिसर्च पेपर में भी लागू हो गया, और किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बना रहे हैं उसमें भी लागू होगा, किसी प्रोजेक्ट का हम प्रपोजल भेज रहे हैं उसमें भी लागू होगा थीसिस स्टेटमेंट, सभी में लागू होगा। तो थीसिस स्टेटमेंट का मतलब whatever you are going to write a report or a statement or a research paper or a project a proposal, so thesis statement is the first sentence of that particular paper or that particular project or that particular report। इससे क्या होता है, रीडर को अंदाजा हो जाता है कि ये टॉपिक क्या है, उसको इंट्रोड्यूस हो जाता है, रीडर गेट्स इंट्रोड्यूस टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। एक्चुअली दिस मस्ट बी क्लियर इन वन सेंटेंस और थीसिस स्टेटमेंट और इन अ initial statement regarding the work or research work or before writing a research paper. This is very important. So this way it gives the impression to the reader that how this work is has been explained. दूसरी चीज, ये एक चीज और भी इससे इंपॉर्टेंट है, देखिए किसी भी रिसर्च में डिस्कशन इज ऑलवेज इन द लास्ट। जब हम सबसे पहले पेपर को लिखते हैं तो वी राइट एब्स्ट्रैक्ट, देन वी राइट इंट्रोडक्शन, देन वी राइट मेथोडोलॉजी, देन हम रिजल्ट्स बताते हैं, उसमें डेटा मतलब डेटा क्या थे, फिर डिस्कशन में रिजल्ट्स भी हम उसका एनालिसिस भी कर देते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस डेटा का। आजकल स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के बिना रिसर्च को हम जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये साइंस में ही जरूरी नहीं है, बल्कि हर सब्जेक्ट में जहाँ डेटा इन्वॉल्व है, जहां कहीं भी डेटा इन्वॉल्व है, और डेटा का मतलब सपोज सेंसस का डेटा है हमारे पास है, सेंसस को भी हम स्टैटिस्टिकली एनालाइज करते हैं। सपोज हमने कहा मेल फीमेल पॉपुलेशन है या किसी भी और तरह का क्लासिफिकेशन हमने पॉपुलेशन में किया है, उसका जस्टिफिकेशन, उसको हम एक तरह से इंटर रिलेशनशिप निकालते हैं, उसके बीच में इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो दिस इज ऑलवेज डन by statistical methods or statistical rules, and then we come to a conclusion, and that is included in discussion part of any research paper or any project. So a thesis statement gives actually also it mentions what you have mentioned in your work or in your research paper or in your peer report, and it also gives the area about his discussion को ये हल्का सा बताता है, but does not disclose so many details, क्योंकि ये इनिशियल स्टेटमेंट है, इसमें सारे डिटेल्स वी कैन नॉट इंक्लूड ऑल द डिटेल्स। इट मींस इट इंक्लूड्स अ स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्कशन। कहने का मतलब जैसे मैं कह रहा था कि पॉपुलेशन में है तो हम थोड़ा सा कहेंगे कि दिस काइंड ऑफ पॉपुलेशन इज सिग्निफिकेंट, या इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है इस तरह के पॉपुलेशन में, इतना बताएगा वो। लेकिन कैसे हुआ, कब हुआ, ये इसमें नहीं बताएगा, वो बताएगा उसको डिस्कशन सेक्शन में या रिजल्ट सेक्शन में, वहां पर डिस्कस करेंगे। इनिशियली जो स्टेटमेंट होगा देयर वी शैल डिस्कस that way some words or some or sentence which introduces which gives the introduction to the topic to a reader, and also some parts of the discussion, but doesn't the details are not given here. जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमने कहा स्टूडेंट्स हैं, जैसे ADHD और स्टूडेंट्स, इस तरह के हमने स्टूडेंट्स से ले, सपोज उनके नेम से ले लिया हमने ADHD से, उनको हमने कहा कि इसको हमको सेपरेट करना है। तो एक चीज और होती है रिसर्च में, कोई भी चीज जब तक उसका यूज नहीं है, या जो आपने रिसर्च जो प्रपोज कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है,
उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इट हैज नॉट बीन स्टैटिस्टिकली जस्टिफाइड, इट मींस इट डजंट हैव एनी इंपॉर्टेंट। आपने कह दिया साहब हम सपोज वी आर गोइंग टू राइट ऑन पर्टिकुलर हिस्ट्री ऑफ एनी रीजन, तो हिस्ट्री में अगर हमने कोई चीज स्पेसिफाई, उसको क्लियर कट हमने नहीं लिखा है उसमें कि इसको हम हिस्ट्री कर रहे हैं, यहाँ से इस तरह से हिस्ट्री हम कर, तो हम जानना चाहेंगे उसको क्या इससे उस हमारे सब्जेक्ट के नॉलेज में कोई इंक्रीज होगा। इट मीन्स whatever we are proceeding in your research paper or in your study, we will have to also think on whether what topic we are proposing has it got some value, या तो साइंटिफिक उसका डिस्कशन में कोई एस्पेक्ट में यूज होगा उसका, या हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस में है तो हम कह सकते हैं इट इज एडिंग टू द नॉलेज इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हिंदी में आपने करा है तो हिंदी में भी ऐसे ही है, और इकोनॉमिक्स में करा है तो इकोनॉमिक्स में ऐसे ही है। हर चीज का आप देखेंगे किस तरह से उस डेटा को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसका यूज है कि नहीं, कहीं ना कहीं उसका यूज होगा, चाहे डेवलपमेंट प्लान में हो, चाहे डेमोग्राफी का जो फ्यूचर प्रोजेक्शंस हैं, दीज आर आल्सो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अब डेटा जो होते हैं, वी हैव टू गेट द डेटा रेडी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डेटा सबसे पहले डेटा ही हम जब हमने टॉपिक डिसाइड किया, उसके पैरामीटर डिसाइड किए, उसका आउटलाइन बनाई, और फिर हमने क्या किया, उसको डेटा हमने तैयार किया। तो उस डेटा को हम सबसे पहले जो फाइंडिंग्स हैं, डेटा क्या है बेसिकली, डेटा आर नथिंग बट दे आर द फाइंडिंग्स। फाइंडिंग मींस व्हाट यू हैव डन। होता क्या है कि जैसे हम लोग देते हैं ना कुछ सब्जेक्ट्स में, चाहे वो एजुकेशन है या इनमें है, वी जनरली गो फॉर क्वेश्चनेयर्स वी गो फॉर इट। साइंस में क्या है, फील्ड वर्क है, तो फील्ड में जाके हम डेटा, चाहे वेजिटेशन है चाहे एनिमल्स हैं, तो फील्ड में जाके हम स्टडी करते हैं। और जहां पर लैब बेस्ड है फाइंडिंग्स, तो फाइंडिंग्स में लेबोरेटरी में हमने एनालिसिस किया, या लेबोरेटरी में हमने रीडिंग्स ली, ऑब्जर्वेशन किया फिजिक्स के केस में, या हमने केमिस्ट्री में उसके रिजल्ट्स लिए, केमिकल एनालिसिस किया, या उसके और मेथड्स किए। और साइंटिफिक सब्जेक्ट्स में फील्ड में जाके या कहीं जाकर हमने उसको उसके डेटा को लिया है, और उसको उन एक्चुअली बेसिकली फाइंडिंग्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, दीज आर द फाइंडिंग्स और ऑब्जर्वेशंस, जिनको हम बेसिकली डेटा कहते हैं। व्हाट वी यानी व्हाटएवर वी हैव ऑब्जर्व्ड, व्हाटएवर वी हैव फाउंड ड्यूरिंग अ स्टडी, ड्यूरिंग कैरिंग आउट अ स्टडी, दिस इज कॉल्ड डेटा। इसी को हम डेटा कह देते हैं, ऑब्जर्व डेटा। देन अब डेटा कंटेन्स अ नंबर ऑफ थिंग्स। डेटा हमारे पास मिला, हमने उसको कन्वर्ट किया, वी हैव प्रेजेंटेबल किया, प्रेजेंटेबल इस फॉर्म में किया उसको, वी कन्वर्टेड द डेटा इनटू, वी कलेक्टेड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, वी कलेक्टेड और प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स और प्लॉट्स, ग्राफ्स के फॉर्म में या टेबल्स के फॉर्म में। तो फिगर्स के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं उसको, ग्राफ्स के फॉर्म में प्लॉट कर सकते हैं उसको, या टेबल्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा, हर एक में फर्क होता है कि हाउ द डेटा इज टू बी प्रेजेंटेड। दिस डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ डिसिप्लिन और द काइंड ऑफ सब्जेक्ट you belong to. That's very important. Then whatever data is there, we have to organize the data by results following a logical sequence. देखिए मैंने कहा था कि हर सब्जेक्ट के अंदर जो सीक्वेंस होगा, आउटलाइन होगी, डिफरेंट होगा। आउटलाइन डिफरेंट होगी तो इसका मतलब उसका लॉजिकल सीक्वेंस भी डिफरेंट हो सकता है। रिजल्ट्स को हम ऑर्गेनाइज करने के लिए, इट इज नॉट डेट, इट इज डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा फॉर रिजल्ट्स। So whatever data we have got or findings we have got, they are to be kept in such a form which is we can say which is logically proper, so that we can say we can go for it and we can analyze it. Then we write the first draft. First of all, what we did, we selected the topic, we designed or we can say wrote its objectives, then we wrote its outline, then we organized the results, then we analyzed them for discussion. So we can say first draft contains these many things. तो इसमें सारी चीजें इंपॉर्टेंट ये है कि central theme of the paper, it should be based on either one or few important findings. देखिए पेपर का जो सेंट्रल थीम होगा या उसका जो टॉपिक आप टाइटल आप बनाएंगे, देखिए रिसर्च का टॉपिक आपका कुछ भी है, वो बड़ा भी हो सकता है, बट रिसर्च पेपर जो आप छापने जा रहे हैं वो एक पर्टिकुलर उसके अंदर के एक एस्पेक्ट पे भी हो सकता है। तो किसी भी 2-3 फाइंडिंग्स अगर आपने करी है उसके अंदर, तो एक पर्टिकुलर फाइंडिंग या दो तरह के फाइंडिंग, इनको आप एक पेपर में उसकी एक सेंट्रल थीम बना के यू कैन गो फॉर राइटिंग और गो फॉर पब्लिशिंग दिस पेपर, यू कैन प्रिपेयर द फर्स्ट ड्राफ्ट। दूसरी चीज रीडरशिप, मैंने आपको बताया रीडरशिप ऑफ द पेपर या रीडरशिप ऑफ द जर्नल, जो रिसर्च जर्नल है
उसकी रीडरशिप को आपको ध्यान में रखना होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव टू कीप इन माइंड द रीडरशिप ऑफ द जर्नल और रीडरशिप ऑफ दैट periodical or paper, whatever it is. Paper general term, it is by paper I mean research paper or any other kind of periodical. And we have to organize the format. We have to prepare the first draft, or we can say rough draft of the paper. It is very important. Whatever format is prescribed for the journal where you are thinking to publish it in, so that format has to be followed. And in this case, we can say this organization is very important. We have to organize the things in these particular aspects. Then important findings are to be kept in justified sequence in the result. अब रिजल्ट्स में भी सबसे पहले किस चीज को रखना है? रिजल्ट्स के अंदर सब हेडिंग्स होंगे. रिजल्ट हेडिंग सपोज पेपर के अंदर है तो रिजल्ट्स में हमारे पास सब हेडिंग्स होंगे. सब हेडिंग्स में हमारे पास 3-4 एस्पेक्ट हो सकते हैं. सपोज हम कोई वेजिटेशन की स्टडी कर रहे हैं किसी एरिया में, तो वेजिटेशन में हम कह सकते हैं सबसे पहले कि वेजिटेशन के टाइप्स क्या हैं. तो पहला सीक्वेंस, उसका सीक्वेंस में सबसे पहले आएगा वेजिटेशन की टाइप्स क्या होंगे. फिर हम कहेंगे कि उसकी डाइवर्सिटी स्पीसीज की कौन कौन सी स्पीसीज है. फिर आते हैं उसके अंदर कंपोजिशन क्या है उसका, उन स्पीसीज का, यानी कितनी वो स्पीसीज हैं और उन स्पीसीज का कितना नंबर है, या उनकी डेंसिटी कितनी है, या उनका वैल्यू ऑफ इंपॉर्टेंस वैल्यू इंडेक्स, या इस तरह की चीज़ें कितनी है. तो हर सब्जेक्ट में लागू होता है कि जो रिजल्ट्स आपने लिखे हैं उनको पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखना है कि कौन सा रिजल्ट पहले आना चाहिए, कौन सा रिजल्ट बाद में आना चाहिए. सपोज आपने ऐसा रिजल्ट लास्ट में लिख दिया जो कि सबसे पहले एक्सप्लेन करना था, लास्ट में आपने लिख दिया, लास्ट वाले को सबसे पहले लिख दिया, तो होता क्या है कि उसमें आपने इतनी सारी चीजें डाल दी जो दूसरे पे बेस्ड थी. पिछले जो दूसरा डेटा था उसमें बेस्ड था. तो इसका मतलब जिस पे बेस्ड है वो पहले आना चाहिए सीक्वेंस के हिसाब से. नेचुरली सबसे पहले आप इनिशियल डेटा रखेंगे जो कम इंपॉर्टेंस का था, फिर नेक्स्ट उसके ऊपर बेस्ड है. ऐसा भी सीक्वेंस हम बना सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब कोई भी पेपर अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको, एक तो सबसे पहली चीज़ होती है ये जिस जर्नल में आप सामने जा रहे हैं, जिस उसमें मैगजीन में या उसमें रिसर्च जर्नल में या रिसर्च पब्लिकेशन में आप छाप रहे हैं उसको, उसके कुछ हेडिंग्स बने हुए होते हैं. ये हेडिंग्स एक्चुअली उस जर्नल के पॉलिसी या उस जर्नल के फॉर्मेट के हिसाब से होते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. So these the structure of any scientific paper. So scientific का मतलब ये scientific ही नहीं है. This is applicable for all the kinds of research paper, even for social sciences and also for humanities. So what happens here? Structure of any paper, whether it's scientific or it is concerning any humanity aspect, a humanity discipline or any social science discipline. So first of all there is title. Then after the title there must be abstract. आफ्टर एब्स्ट्रैक्ट देयर इज इंट्रोडक्शन. यहाँ पर बीच में एब्स्ट्रैक्ट है, इंट्रोडक्शन के बीच में एब्स्ट्रैक्ट के लास्ट में कीवर्ड्स भी देते हैं हम लोग, अभी डिस्कस करेंगे कीवर्ड्स. फिर इंट्रोडक्शन, देन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, देन रिजल्ट्स एंड डिस्कशन, देन कंक्लूजन्स. उसके कंक्लूजन क्या होंगे, एक्नॉलेजमेंट्स, किस किस ने आपको उसमें मदद करी, किस किस ने आपको अगर फंड दिया है तो कौन सी एजेंसी ने आपको फंडिंग किया उस रिसर्च को करने के लिए, या फेलोशिप दी है, स्कॉलरशिप दी है, वो किस एजेंसी ने आपको दी है, कैसे आपको मिली, उसका जिक्र आएगा. उस एजेंसी को आप एक्नॉलेज करेंगे, या उस लेबोरेटरी को, या उस पर्सन को, या उस हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को, या हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, उसको आप एक्नॉलेज करेंगे. वो एक्नॉलेजमेंट्स में आता है. फिर लास्ट में आता है रेफरेंसेस का पार्ट, जिसमें हम रेफरेंसेस लिखते हैं. फिर सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन. कभी कभी क्या होता है आपको सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में बीच में लास्ट में टेबल्स की फॉर्म में, या कह सकते हैं उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स वो सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन में लास्ट में दिए जा सकते हैं. कोई भी पेपर होता है, एक छोटा सा एग्जांपल है कि कोई पेपर हमने दिया तो उसका टाइटल होता है, किसने दिया, उसका ऑथर और उसका एड्रेस होता है. उसके बाद उसमें एब्स्ट्रैक्ट है, द इंट्रोडक्शन है. इंट्रोडक्शन के बाद उसमें किस तरह से आपने स्टडी किया उसको मेथड्स कहते हैं. मेथड्स के बाद आपने उसको रिजल्ट्स दिए, फिर आपने उसको डिस्कस किया, डिस्कशन का पार्ट आ गया. फिर लास्ट पेज में जनरली ये छोटा सा पेपर मैंने रखा है यहाँ पे, तो लास्ट के पेज में देखिए एक्नॉलेजमेंट, जहाँ डिस्कशन खत्म हुआ, आफ्टर दैट देयर इज एक्नॉलेजमेंट एंड देयर आर सम रेफरेंसेस. रेफरेंसेस कभी कभी बिब्लियोग्राफी से रेफरेंसेस लिखते हैं मोस्टली, बट बिब्लियोग्राफी भी कह देते हैं उसको. अब आते हैं सबसे पहला स्ट्रक्चर किसी भी रिसर्च पेपर का. ये साइंटिफिक ही नहीं है बल्कि सभी के लिए लागू है, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज में भी. लेकिन फर्क हर जर्नल में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा. तो टाइटल ऐसा होना चाहिए, टाइटल शुड ऑलवेज बी वेरी सिंपल. ये नहीं कि हमें जबरदस्ती इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देना है कि बड़ा मुश्किल हो जाए. इट शुड बी वेरी सिंपल, यानी इजीली आपको समझ आ जाए, लेकिन अट्रैक्टिव भी होना चाहिए. साथ में ये लगे कि हाँ साहब इसमें कुछ चीज हो रही है, काम कुछ हुआ है. तो काम आपने किया है,
लेकिन अगर टाइटल में नहीं लगेगा तो आदमी उसको पढ़ने को उसको नहीं पढ़ना चाहेगा। अगर टाइटल अट्रैक्टिव नहीं होगा, एक्यूरेट नहीं होगा और इन्वेस्टिगेशन को नहीं बताएगा, तो टाइटल को हम उस तरह से कह सकते हैं वो टाइटल ठीक नहीं है। So title should always be simple, attractive, accurate, बिल्कुल to the point। जो words आपने लिखे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए sequence उनका और words का, and it should also reflect the investigation, that is whatever you have found out, whatever you have observed, whatever you have studied or analyzed, so that should be reflected, that should be shown in that particular title of that particular paper। दूसरा अभी डिस्कस हमने किया था, टाइटल शुड बी शॉर्ट। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई लोग जो है 3-3, 4-4 लाइन का टाइटल बना देते हैं, वो बहुत बेकार होता है। वो टाइटल पढ़ के ही जो रिव्यूअर होगा या एक्सपर्ट होगा उसको किनारे कर देगा उस पेपर को, ये से ना ये तो बकवास लगता है, इट डजंट लुक सीम टू बी अ गुड रिसर्च पेपर बिकॉज ही हैजंट गिवन अ क्लियर कट टाइटल और अ सिंपल टाइटल और शॉर्ट टाइटल। टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड इंफॉर्मेटिव, जो ऊपर हमने बताया कि इन्वेस्टिगेशन को रिफ्लेक्ट करता है, इट मींस इट शुड हैव इंफॉर्मेटिव। So it is very important. Title should be short, simple, attractive, and informative. So it gives a brief idea about the information, what about the information which you have given in your research paper. एक चीज और आती है इसमें, कभी कभी इसमें कहा जाता है कि भाई अब टाइटल में आपने लिख दिया ए स्टडी ऑन, या लिख दिया दिस इज अ नोबल एस्पेक्ट, सब आपने लिख दिया रेफरेंस ऑफ दिस थिंग। तो इस तरह के वर्ड्स को जनरली वो हम उसको पसंद नहीं करते हैं, ये उसको अवॉइड करना चाहिए। जैसे हमने एक बॉटनी की फील्ड में हमने लिया एक टाइटल का एग्जांपल लिया, ए स्टडी ऑन प्लांट कम्युनिटीज ऑफ राजाजी नेशनल पार्क। तो ए स्टडी देखिए यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आर्ट ह्यूमैनिटीज में भी सोशल साइंस में भी लागू होता है चीज। आपने लिखा एक अध्ययन, तो अध्ययन तो सभी हैं, वो अध्ययन लिखने की आवश्यकता क्या है उसमें? आप यहाँ पर आपने लिखा प्लांट कम्युनिटीज ऑफ राजाजी नेशनल पार्क। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि हमने कहा कि साहब इसमें सपोज जैसे चंद राजवंश के बारे में आप लिख रहे हैं उसमें, तो चंद राजवंश, इस कुमाऊं का चंद राजवंश हमने लिखा सपोज, सो इसको हम कहेंगे साहब कुमाऊं के राजवंश का एक अध्ययन। इस तरह से हम लिखते हैं, तो एक अध्ययन लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर वहां पर कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट आप लिख रहे हैं कि कुमाऊं के राजवंश का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या था, वहां पर आप लिख सकते हैं, उसको वहां जोड़ सकते हैं, क्योंकि वो टाइटल में इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको आवश्यकता है वहां पर। तो जनरली जबरदस्ती इन शब्द को नहीं यूज नहीं करते हैं जब तक कि उनको जरूरत ना हो, या बिल्कुल एस्पेक्ट स्टडी, क्योंकि जो हम स्टडी कर रहे हैं ऑलरेडी वो स्टडी है, लेकिन कोई पर्टिकुलर चीज में कर रहे हैं तब हम वी शैल इंक्लूड दिस पर्टिकुलर थिंग्स। एब्स्ट्रैक्ट लिखने के बाद हम आते हैं यहाँ पर, मैंने इसमें लिखा नहीं है, कीवर्ड्स लिखते हैं जनरली, सभी जर्नल्स कहते हैं कीवर्ड्स दे दीजिए। कीवर्ड्स का मतलब होता है कोई भी सपोज चंद राजवंश की हमने बात करी थी, कुमाऊं का साम्राज्य है, चंद राजवंश है, चंद राजवंश में हमने लिखा चंद राजवंश, फिर हमने लिखा कॉमा करके हमने लिखा अल्मोड़ा, फिर हमने कॉमा करके लिखा पिथौरागढ़, फिर हमने लिखा उसमें नैनीताल, फिर हमने लिखा चंद राजवंश। इस तरह से उसको जितने भी टाइटल के वर्ड्स थे जो रिलेटेड है उनको डिफरेंट शब्दों में टाइटल का जो थीम है उसको डिफरेंट वर्ड्स में हम ब्रेक कर देते हैं। तो वर्ड्स में ब्रेक करने का मतलब ये होता है कि ये इन टॉपिक्स के अंदर आता है, इन टॉपिक्स के अंदर ये पार्ट है। सपोज हमने कहा चंद राजवंश, इसका मतलब ये चंद राजवंश से रिलेटेड ये स्टडी है। दूसरा हमने लिखा नैनीताल, तो नैनीताल, फिर हमने लिखा कुमाऊं इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कुमाऊं, हिस्ट्री कॉमा कुमाऊं, तो ये सब कहलाएंगे उसके कीवर्ड्स। यानी इन वर्ड से ये एरिया डिफाइन हो जाएगा, ये एस्पेक्ट डिफाइन होगा, यानी वो ब्रॉड वर्ड्स हैं। ब्रॉड वर्ड्स का मतलब कभी सर्च कोई करेगा इंटरनेट पे, इन वर्ड से भी सर्च करेगा तो वो पेपर उसमें आ सकता है सर्च करने में गूगल में। सो दीज आर कॉल्ड कीवर्ड्स। सो इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। सो व्हेन वी राइट एन इंट्रोडक्शन, व्हाट वी शुड डू, वी शुड एक्चुअली begin, we should always begin with a general background of the work. Whatever work has been done in that particular subject, that has to be given in the beginning के पैराग्राफ्स में उनके बारे में चर्चा की जाती है। और जनरली हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि ये कहाँ का वर्क है, किस बारे में वर्क है, थोड़ा सा ये भी बताते हैं। प्लस ये बताते हैं कि बैकग्राउंड का मतलब इसमें क्या क्या काम हुए हैं, कैसे हुआ है। हालांकि वो रिव्यू भी इसी का पार्ट है, ऑब्जेक्टिव इंट्रोडक्शन के पार्ट है। इसको हम कुछ सारे, इसको कभी भी हम एक ऐसे के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। वी शैल ऐड पैराग्राफ्स इन, वी शैल ब्रेक इट इनटू पैराग्राफ्स, सम स्मॉलर पैराग्राफ्स, एंड कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हम इसमें डालेंगे जिसमें पिछले
वर्कर्स ने जिन्होंने काम किया है, these are to be added by in small paragraphs. So these paragraphs should be included to to include the previous work given by or the work done by previous workers. लास्ट में इसमें आता है कि हमने जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर किया है उसके ऑब्जेक्टिव्स हम लिखेंगे। सबसे पहले तो हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और इश्यूज क्या थे, पॉइंट आउट जो हमने स्टडी में किए, ये जरूरी हम लिखेंगे। और उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब वही है जो 20 वाले यहाँ पर 20 वाले पॉइंट पे है कि प्रीवियस वर्कर्स का जो वर्क है वो रिव्यू ऑफ लिटरेचर का ही पार्ट है बेसिकली। तो हम इंट्रोडक्शन में 3 चीजें हम इंपॉर्टेंट वी इंक्लूड ऑलवेज 3 थिंग्स। वी कैन से brief introduction to the topic। दूसरा, what about the earlier workers have done, पहले किन लोगों ने इस तरह के वर्क में या इस तरह इसके रिलेटेड एरिया में क्या वर्क किया है, किन किन ने किया, कब किया, तो उनके रेफरेंसेस आएंगे और कहाँ वो उन्होंने छापा है। खाली सुनी की बात नहीं होगी बल्कि कहाँ पब्लिश किया है, दैट हैज टू बी इंक्लूडेड, उसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और तीसरा पार्ट इंट्रोडक्शन में जो था दैट वाज वी कैन से द मेन ऑब्जेक्टिव्स। सो मेन ऑब्जेक्टिव्स भी वहां पर हमको देने पड़ेंगे उसके, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। या कभी कभी कुछ जर्नल्स में ऑब्जेक्टिव्स का हेडिंग अलग कर देते हैं, वह जनरली इंट्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। सो ऑब्जेक्टिव यूजुअली आर गिवन इन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द इंट्रोडक्शन वेयर द इंट्रोडक्शन इज गोइंग टू क्लोज। अब इसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसी को हम कह देते हैं मैथडोलॉजी, इसको मैथडोलॉजी भी कह देते हैं, इसको हम मटेरियल्स एंड मेथड्स भी कह देते हैं, इसी को हम कह देते हैं द मेथड्स ऑफ स्टडी भी कह देते हैं, कई तरह के नाम से। एक्सपेरिमेंट डिजाइन हमने इसलिए कहा इसको कि हमने जो एक्सपेरिमेंट किया है, अगर कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, हम किसी भी तरह का स्टडी करने जा रहे हैं, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट है या कोई हमने आइडिया लिया है कि ये चीज़ में हुई होगी तो क्या ये सही है, क्या ऐसा हो सकता है, या ऐसी हाइपोथेसिस हम लेके चलते हैं। तो मटेरियल्स एंड मेथड्स में, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में या डेटा एनालिसिस के मेथड्स में इसमें क्या चीज़ होनी चाहिए, दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, ये बताता है, इसमें हमें बताना पड़ता है कि सैम्पलिंग के मेथड क्या होंगे और एनालिसिस के मेथड क्या होंगे। देखिए, जहाँ पर वेयर वी आर गोइंग फॉर सिंपली वी आर गोइंग फॉर सम, जैसे लिटरेचर में है फॉर एग्जांपल, या हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज में है, जहाँ पर हमें क्वेश्चनेयर है या हमने सैम्पलिंग के मेथड्स को क्वेश्चन के फॉर्म में किया, या हमने उसको टेबल ले लिया और हाइपोथेसिस बना लिया और उसमें डेटा हमने डिटेल्स भर ली, फिर उसके बाद एनालिटिकल मेथड्स में उसको करेंगे। और दूसरी चीज, एनालिटिकल मेथड्स का मतलब आएगा कि साइंटिफिक एरियाज में जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो एनालिसिस के कौन से तरीके होंगे और वो तरीका कितना रिलायबल है और कितना रिलायबल तरीका ही हम यूज करेंगे हमेशा। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट इसमें इस हेडिंग में ये है, वट एवर methodology you are going to follow, you should mention who gave this methodology, ताकि कोई पढ़ने वाला उसको ढूंढ सके साहब वो वहां पर था, ये आपने कहा साहब वो फला ऑथर ने ये मेथोडोलॉजी डिजाइन की थी, या एनालिसिस करने का केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, या सैम्पलिंग करने का तरीका बॉटनी में, जूलॉजी में, या कह सकते हैं मैथमेटिक्स में कोई डिजाइन करने का मेथड निकाला है, उसने सॉल्व करने का मेथड निकाला है, तो उसका हम लिखेंगे कौन सा मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है और वो किसने दिया था, किस ईयर में दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेनेवर यू आर गोइंग टू assign, we are going to write the methodology, you will have to assign first of all you will have to give the reliable method इसमें यूज करना चाहिए, लिखना चाहिए और यूज भी करना चाहिए, यूज करेंगे तभी आप लिखेंगे इसको। दूसरी चीज, who has given this particular method, who का मतलब he may be one person, he may be more than one, then in which year he has given or public and where he published it। तो पब्लिकेशन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ लिखेंगे उसका नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑथर जिसने मेथड दिया, और दूसरी चीज उसने उसको कहाँ छापा, उसका डिटेल लास्ट में रेफरेंसेस में देना पड़ेगा। यहाँ पर सिर्फ ईयर देंगे ताकि हम पीछे उसको ढूंढ सके। तो दूसरा उसमें एक्सपेरिमेंट डिजाइन में फिर हम उसको बताते हैं कि स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन करने के लिए कौन से मेथड हमने यूज किए, उनका भी चर्चा यहाँ करनी पड़ेगी कि वो स्टैटिस्टिकल मेथड कौन सा था, कोरिलेशन था, रिग्रेशन था, टी टेस्ट था, एफ टेस्ट था, जेड टेस्ट था, कौन सा टेस्ट हमने यूज किया उसकी सिग्निफिकेंस को टेस्ट करने के लिए। So whatever method we have, statistical method we have followed for determining the significance of the study or significance of the data, whatever data we have found. So we have also to mention the author who have given these kinds of statistical methods. This is also very important.
फिर आते हैं अगले पार्ट में, इसमें ये आता है कि रिजल्ट्स और डिस्कशन। कई सारे जर्नल्स में रिजल्ट्स अलग हेडिंग होता है, डिस्कशन अलग हेडिंग होता है। तो मैंने बताया ना, फॉर्मेटिंग और स्टाइल, उस जर्नल का क्या स्टाइल है, तो वो रिसर्च पेपर जो भी लिख रहे हैं साइंटिफिक है या हम कह सकते हैं ह्यूमैनिटीज का है, सोशल साइंसेस का है, या बिजनेस स्टडीज का है, कॉमर्स का है। सो एनी पेपर इज पेपर, एनी रिसर्च पेपर में बिलोंग टू एनी एरिया। द ऑब्जेक्टिव्स में डिफर, टाइटल में डिफर, एंड मेथड्स में डिफर। जब मेथड्स डिफर करेंगे इट मीन्स रिजल्ट्स भी उन्हीं के हिसाब से आएंगे। तो रिजल्ट्स और डिस्कशन कभी कभी अलग अलग हेडिंग्स में होता है। पहले रिजल्ट्स आते हैं, फिर रिजल्ट्स लिखने पूरे, उसके लिखने के बाद देन न्यू हेडिंग इज कॉल्ड डिस्कशन। सो दिस मे बी सेपरेट हेडिंग्स। So results always are to be explained in detail. They should be described in detail, and they must have clarity in them. So this is very important. Results should not be vague. They should not be, we can say, unclear, and they should be not described in a very short way. So results is the main part of any research paper. क्योंकि कौन सा मेथड आपने यूज किया, उनके बेसिस पर आपने डेटा निकाले या एनालाइज किया डेटा को, उसको देखा, तो वो रिजल्ट्स आप वही आपके रिजल्ट्स हैं। उनको आपको यू हैव टू मेंशन देम इन डिटेल, यू हैव टू मेंशन देम इन क्लैरिटी। फिर दूसरी चीज, डिस्कशन में क्या करते हैं, देखिए रिजल्ट्स को हम कई तरह से डिस्क्राइब कर देंगे, टेबल्स के फॉर्म में, टेस्ट के फॉर्म में, टेबल्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, या किसी और फिगर की फॉर्म में। वी कैन डिस्क्राइब देम इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स आल्सो। सो फिगर्स, टेबल्स एंड ग्राफ्स, उस फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में भी दे सकते हैं। देन आता है उसके बाद डिस्कशन। डिस्कशन में व्हाट वी डू इज, whatever results have been given, they are to be, you should go for their interpretation. अब इंटरप्रिटेशन जो है पिछले रिजल्ट्स के साथ उनका क्या था, वो वहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिजल्ट्स के अंदर। तो मैंने आपको डिस्कस किया था, डिस्कशन में सिर्फ हम जो प्रेजेंट रिजल्ट्स हमने पाए हैं या आपने जो निकाले हैं, उन रिजल्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, जो स्टैटिस्टिकल मेथड के हिसाब से कितना अच्छा है, नहीं है, कैसे लग रहे हैं। और पुराने लोगों ने अगर उसी तरह का काम किया है, किसी पुराने ऑथर्स ने या एक्सपर्ट्स ने उस एरिया में, तो उनसे हम थोड़ा उसको कंपेयर भी करेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अभी डिस्कस किया था, रिजल्ट्स और डिस्कशन में जहाँ जहाँ जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, तो फिगर्स, टेबल्स, ग्राफ्स और मॉडल्स, हम कंप्यूटर से डिजाइन किए हुए मॉडल्स या ग्राफ्स, दिस कैन बी इंक्लूडेड नहीं हुए। तो रिजल्ट शुड बी क्लियर एंड रिजल्ट शुड बी, रिजल्ट्स के अंदर अगर कई चीज़ें हैं तो वो रेलिवेंस के हिसाब से या उनके सीक्वेंस जो होता है लॉजिकल होना चाहिए। सीक्वेंस किसके बाद किसको देंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंदर हम जहाँ जहाँ जरूरत होगी फिगर्स, टेबल्स और ग्राफ्स उनको हम देंगे, और उनका नंबरिंग भी करते जाएंगे साथ साथ। नंबरिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद जब पेपर हम पूरा इतनी चीजें लिख चुके होते हैं, तो लास्ट में हम आते हैं उसके एस्पेक्ट में, दिस इज कॉल्ड कंक्लूजन एस्पेक्ट। कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन का मतलब, एक तो हमने लिखा पेपर का एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट में तो हम लिखते हैं कि पेपर में हमने क्या किया। शुरू में जो एब्स्ट्रैक्ट वाला पार्ट था उसमें हम लिखते हैं कि हमने क्या चीज एनालाइज की, उसकी एक बहुत शॉर्ट आइडिया आ जाता है। उसमें बहुत शॉर्ट डेटा भी हो सकता है, बहुत शॉर्ट में, मोटा नहीं, डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट डेटा भी हो सकता है कि इतने तरह के रिजल्ट्स हमको मिले, ये एब्स्ट्रैक्ट में आ सकता है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में फर्क है। कंक्लूजन एब्स्ट्रैक्ट की तरह तो होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट की कॉपी नहीं होती, कुछ एब्स्ट्रैक्ट से हटके होता है, एब्स्ट्रैक्ट से आगे भी होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कभी भी इसमें हम ऐसा यूज नहीं करते, वर्ड्स को यूज नहीं करते, कंक्लूजन में नहीं लिखते कभी भी स्टडीड और इन्वेस्टिगेटेड, इस तरह के स्टेटमेंट, दैट वी इन्वेस्टिगेटेड दिस थिंग, ये कंक्लूजन में कभी नहीं आता। वी स्टडीड दिस पर्टिकुलर थिंग, ये एब्स्ट्रैक्ट में या और जगह आ सकता है, या रिजल्ट्स में आ सकता है, इंट्रोडक्शन में आ सकता है, या ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि क्या इन्वेस्टिगेट हम कर रहे हैं, क्या स्टडी करने हम जा रहे हैं। बट दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कंक्लूजन। कंक्लूजन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये लिखी जाती है कि व्हाट एवर रिजल्ट्स यू हैव गिवन, ये क्या बताते हैं। दूसरा चीज, conclusion has got a very important role, that is conclusion includes scope or further scope for work. ये बड़ा important aspect है। Conclusions gives a brief idea about what we have done, not summary. Summary का मतलब abstract की तरह नहीं है, दूसरी तरह से आप लिखेंगे उसको कि हमने इस तरह से काम इसमें मिला। लेकिन अब इसमें आगे क्या हो सकता है और इसका आगे काम करने का क्या स्कोप है, वो भी कंक्लूजन का पार्ट है। तो कंक्लूजन में जनरली
आगे लास्ट में ये लिखा जाता है दैट दिस पर्टिकुलर स्टडी और दिस पर्टिकुलर फाइंडिंग्स, दिस पर्टिकुलर मेजर फाइंडिंग्स जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में व्हाट इज देयर रेलेवेंस इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स एंड व्हाट आर द एरियाज which needs to be investigated further, which need to be investigated in addition to this particular study. इस स्टडी में जो आपने काम किया उसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको हमें इंक्लूड करने की आवश्यकता है। फिर इसमें आता है उसके बाद कि एक्नॉलेजमेंट, मैंने बताया था एक्नॉलेजमेंट का मतलब, अब देखिए एक्नॉलेजमेंट थीसिस में और रिसर्च पेपर के एक्नॉलेजमेंट में बहुत फर्क होता है। थीसिस में हम लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट, हमने शुरुआत किया, हमने अपने सुपरवाइजर को लिखा, उनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त किया, उनको थैंक्स लिखे, या उनको इंडेप्टनेस अपना लिखा उसको, और फिर हमने लिखा उस यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट के हेड को या कलीग्स को नाम लिखा, या रिसर्च जो लैब है उसको थैंक्स दिए। हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को हम देते हैं जनरली, प्रिंसिपल या वाइस चांसलर, उनका भी हम लिखते हैं कि उन्होंने, क्योंकि उनके परमिशन के बिना किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं कर सकता है, प्रोसेस है, ये हम लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं कि सबसे, अब लेकिन ये कहानी जो है थीसिस में लंबी चल सकती है, बट इनके नॉट इन द केस ऑफ रिसर्च पेपर। जनरली इन रिसर्च पेपर जनरली द फंडिंग एजेंसी इज रिक्वायर्ड मेनली। सपोज आपको यूजीसी, सपोज आपको सीएसआर की फेलोशिप मिल रही है, जेआरएफ मिल रहा है, तो आप देखेंगे सीएसआर या यूजीसी को एक्नॉलेज करेंगे, उनको थैंक्स देंगे बिकॉज फॉर ग्रांटिंग दिस जेआरएफ और जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और सपोज किसी प्रोजेक्ट में यू आर डूइंग एज अ रिसर्च स्कॉलर, एज अ सिंपली जेआरएफ इन पर्टिकुलर, एक होता है नेशनल जेआरएफ जो आपने नेट जेआरएफ वाला है, उसको आप थिंक करेंगे सीधे यूजीसी को। दूसरा आपको जेआरएफ मिला है किसी प्रोजेक्ट में, तो दैट जेआरएफ फैसिलिटी इज गिवन बाय सम अदर डिपार्टमेंट इन एडिशन टू यूजीसी एंड सीएसआईआर। तो सपोज आईसीएसएसआर ने दिया, या आपको इसके अलावा सब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने दिया, या हम कह सकते हैं साइंस एकेडमी ने दिया है, तो उनका नाम हमें लिखना पड़ता है। या स्टेट काउंसिल होती हैं, जैसे स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे यूकॉस्ट है, उत्तरांचल स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसने एक प्रोजेक्ट दिया है, उस प्रोजेक्ट में आपने काम किया है, उसको आप छाप रहे हैं, तो उसको, उस फंडिंग एजेंसी को यू विल हैव ऑलवेज टू एक्नॉलेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू विल एक्नॉलेज, यू विल गिव थैंक्स टू द सेंटर या डिपार्टमेंट of your subject, the center or department of your institution, और colleagues और technician जितने भी हैं, ये नहीं कि सबके पूरी कहानी आप you are writing them in a long list. Generally in short they are given. Sometimes the names are not required in some of the cases, but the important names can be given. So this is a part of an acknowledgement. Funding agency and important official we can say acknowledgement has to be given. अब हम आते हैं इसमें कि हम कोई भी रिसर्च पेपर हमने लिखा, साइंटिफिक हो चाहे वो ह्यूमैनिटीज का हो या सोशल साइंसेज का, रेफरेंसेस लिखने का स्टाइल सब में डिफरेंट होता है। मैंने यहाँ पर इसको ज़्यादा नहीं लिखा है। रेफरेंसेस के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में साइटेशन का मेथड्स, केमिस्ट्री में कुछ डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट स्टाइल हो सकता है, और बॉटनी या जूलॉजी की फील्ड्स में साइट करने का तरीका डिफरेंट है। लेकिन जो भी तरीके होते हैं डिफरेंट के लिखने के, कभी कभी कुछ जर्नल्स फुट नोट्स भी अलाउ करते हैं, लेकिन आजकल जनरली ऐसा कम है। लेकिन मैंने देखा है ह्यूमैनिटीज में, सोशल साइंसेज में और लिटरेचर में, इनमें फुट नोट्स का रिवाज ज़्यादा है। सो देयर द फुट नोट्स में भी रिक्वायर्ड। फुट नोट्स जनरली क्या होते हैं, जो पेज खत्म होता है, जहाँ उसके नीचे, जिसको हम कह देते हैं उसका हेडर और हेडर फूटर कहते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट का, एमएस ऑफिस का जो, एमएस वर्ड का जो हेडर फूटर डॉक्यूमेंट है, फूटर डॉक्यूमेंट में इसको इंक्लूड करते हैं। तो या तो हम स्टार लगा के उसको नीचे लिखेंगे, स्टार लिख के, या उस पेज के ऊपर हमने जहां वो चीज आई थी वहां पर हमने नंबर लिख दिया 1 उसके ऊपर, और जनरली उसको हम ऊपर लिखते हैं, लाइन से ऊपर उसको हम ऊपर लिख के, और देन वी साइट इट इन द फॉर्म इन द फूटर, और वहां पर उसके बारे में लिखते हैं। अब वो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया, लिटरेचर में, सोशल साइंसेज में और कुछ बिजनेस स्टडीज में भी देखा मैंने। आई हैव सीन इट दैट दे राइट द कंप्लीट स्टेटमेंट इन द फूटर और इन द फूटर नोट of that particular aspect. And लेकिन जनरली बाकी रिसर्चेज में, मोस्ट ऑफ द रिसर्चेज चाहे ह्यूमैनिटीज की हो, सोशल साइंसेज की हो और साइंसेज की, साइंस डिपार्टमेंट, साइंस सब्जेक्ट्स की हो, दे आर व्हाट वी डू इट, जहां जहां कोई ऑथर आता है उस ऑथर का नाम लिखते हैं। सपोज वी से दिस स्टडी या दिस काइंड ऑफ स्टडी ऑन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट वाज डन बाय रैमजे, तो रैमजे हमने लिखा, और ब्रैकेट में हमने लिखा
1937, तो इसका मतलब रेमजे ने 1937 में उसको छापा, इतना ही लिखेंगे यहाँ पर। और जब रेफरेंसेस सेक्शन जहां पर आता है, टेक्स्ट में तो ऐसा लिखा हमने रेमजे 1937, और रेफरेंसेस में जनरली वैसे यहाँ भी दो तरह के रिवाज हैं साइट करने के, या तो 1 2 3 4 करके जहां टेक्स्ट में आते हैं उसी ऑर्डर में लिखते हैं, वहां अल्फाबेटिकल से कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जहां ज्यादातर जर्नल्स में दे आर साइटेड इन अल्फाबेटिकल मैनर, सो तो वहां पर रेमजे, तो आर जो जहां पर आर से शुरू होंगे रेफरेंसेस जिस लाइन पे, तो रेमजे आएगा, रेमजे के बाद उसका इनिशियल होंगे और 1937 लिखा हुआ होगा, इसका मतलब वो रेफरेंसेस जो हमने टेक्स्ट में दिया था। सो द साइटिंग, द वे ऑफ साइटिंग रेफरेंसेस डिपेंड्स ऑन the type of the journal, what is the formatting style or citation style in a journal that has to be followed in writing the draft, in preparing the draft for publishing, or in preparing the final draft, or we can say first draft of that particular paper. So in the wherever they are required, they are to be cited in the text or in the reference section as per format of the journal. दूसरी चीज, रेफरेंसेस शॉर्ट में कभी नहीं लिखे जाते हैं। आई नो कभी भी ऐसा होता है, कभी रेफरेंसेस शॉर्ट में होते हैं, या कभी कभी क्या होता है, आपने टेक्स्ट में दे दिया, टेक्स्ट में आपने रेफरेंस दे दिया और रेफरेंस सेक्शन में उनको लिस्ट करना भूल गए, तो वो भी एक बहुत बड़ी गलती है। दूसरा, आपने वहां पर लिख दिया रेमजे 1937 और पीछे आपने रेमजे 1937 लिखा और आगे उसकी किताब का नाम लिख दिया आपने, या उसके पेपर का नाम लिख दिया, लेकिन आगे ये नहीं लिखा वो किताब कहाँ छपी, अगर किताब है तो किताब का पब्लिशर कौन था और उसका प्लेस ऑफ पब्लिकेशन क्या था, ये भी देना पड़ता है। अगर जर्नल है तो जर्नल में पेपर का नाम क्या था और उस जर्नल का क्या नाम है, उस जर्नल के कौन से वॉल्यूम नंबर में छपा है उसका वॉल्यूम नंबर देंगे, या उसका इसके बाद उसका पार्ट नंबर देंगे, वॉल्यूम के बाद पार्ट नंबर, यानी कैसे कहने का मतलब उसका इशू कौन सा इशू नंबर था, और उसके बाद पेज नंबर देते हैं उसके, किस पेज नंबर से शुरू हुआ, किस पेज नंबर पे खत्म हुआ। So these things have to be given always. That is called reference should be complete. दूसरी चीज मैंने आपसे कहा था, रेफरेंस शुड, जो रेफरेंस आपने टेक्स्ट में लिखा है वही रेफरेंस आप पीछे देंगे। आपने टेक्स्ट में रेफरेंस दिया, पीछे नहीं लिखा, तो वो इनकम्प्लीट हो गया, रेफरेंसेस में मिसिंग हो गया। या आपने ऐसा लिखा कि रेफरेंस कहीं आया ही नहीं टेक्स्ट में, ऐसा ही हमने कई बार देखा है, रिव्यू जब हम लोग करते हैं तो we find it that sometimes what happens, the references cited in the paper, in the text of the paper, they should be always cited in the reference list. उसका reference list हम कहते हैं, reference section या reference list कह देते हैं, वहाँ वो होना चाहिए। और it should be complete there, and complete means if it is a paper, name of the journal, volume of the journal, part of the journal, page numbers of the journal, they are to be given for that reference, in that reference. And if it is a book, the name of the book, name of the publisher, and place of publication. Journal में place of publication is not given. Place of publication is not given in journals, but only in case of books it is given. And year of publication is very important. Year of publication of the book, yeah, year of publication of the research paper, जो भी applicable है. I told you the references cited in the text, they should all be included in the reference list, reference section in the last. Number two, the reference, another aspect is the references cited in the text. If it is missing in the reference section, it is a mistake. Sometimes another mistake is the reference has not been cited anywhere in the text. कहीं भी नहीं है टेक्स्ट में, उस रेफरेंस का नाम ही नहीं है, रेमजे या कोई भी है, या हमने कह दिया जिम कॉर्बेट है, या कॉर्बेट का नाम ही नहीं है उसमें। और लास्ट में रेफरेंस की लिस्ट में आपने लिख दिया कॉर्बेट, जिम, माई इंडिया 19, I'm not remembering the age, name, and then name of publication. अब पता लगा उसको कॉर्बेट का या रेमजे का नाम है ही नहीं कहीं उसमें, आपने रेफरेंस कहीं साइट किया ही नहीं है टेक्स्ट में और पीछे आपने लिख दिया, तो ये भी दिस इज आल्सो काइंड ऑफ मिस्टेक। सो कभी भी जब whenever you go write the first draft of the paper, you have to clearly check it to at least 2 or 3 times so that mistakes are I can say they can be corrected. In this case, sometimes what happens, references not relevant, देखिए do not cite references not relevant to the work, this is also very important. जबरदस्ती पेपर को बढ़ाने के लिए ऐसे रेफरेंस मत डालिए उसमें जिसका उस वर्क से कोई रेलिवेंस नहीं है, उस वर्क से कोई संबंध नहीं है। So such references are avoided, they should not be given in the include. अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट होती है जैसे ब्लैंक एक्सपेरिमेंट होते हैं उसमें, साइंस में या केमिस्ट्री में या किसी और सब्जेक्ट में, तो एडिशनल डेटा, कभी कभी एडिशनल डेटा हम दे देते हैं जो यूजफुल होता है वो स्टडी के लिए, उसको हम कह देते हैं सपोर्टिव इंफॉर्मेशन। ये हमेशा जब पेपर खत्म होता है जहाँ रेफरेंसेज, उसके बाद हम देते हैं।
अब इसके बाद आता है, यू हैव प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द जर्नल, यू हैव ऑन द लुकिंग इनटू इट्स डिफरेंट एस्पेक्ट्स, so you have to select a journal. So question comes, how to select a journal for publication of your paper what we have written. अब इसमें क्या होता है, द रीडरशिप ऑफ द जर्नल, मैंने कहा था रीडरशिप जो होता है जर्नल का, रीडरशिप का मतलब होता है उस जर्नल का जो हेडिंग है, जर्नल का जो नाम है, उसके हिसाब से उसके रीडर्स हैं ऑलरेडी, वी हैव इट्स रीडर्स। तो किसी भी जर्नल में सपोज हमने कहा स्पेशलाइज्ड एरिया है, जैसे बायोलॉजी में हमने कहा स्पेशलाइज्ड जर्नल है, तो हमने कहा बायोलॉजी जर्नल या जर्नल ऑफ बायोलॉजी ये हमने लिखा, और स्पेशलाइज्ड एरिया हमने कहा इकोलॉजी जर्नल हमने बोल दिया। इसी तरह से हमने लिखा पॉलिटिकल साइंस जर्नल या जर्नल ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जर्नल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स, या हम कहते हैं जर्नल इंटरनेशनल स्टडीज। अब स्पेसिफिक में आएंगे तो हम कह सकते हैं इकोनॉमी, सपोज वी कैन से इकोनॉमी ऑफ श्रीलंका जो प्रेजेंट में आजकल चर्चा में है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं सिंपली वी कैन से साउथ अफ्रीकन स्टडीज, तो वो स्पेसिफिक एरिया हो गया पॉलिटिकल साइंस में या इंटरनेशनल स्टडीज में। सो दैट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट। सो ऑन द बेसिस ऑफ रीडरशिप ऑफ जर्नल यू विल हैव टू सेलेक्ट द जर्नल वेयर शुड वी सेंड दिस पेपर फॉर पब्लिकेशन। ये हालांकि हम सबसे पहले तय करते हैं इसको, क्योंकि लिखना हमको इसके हिसाब से पड़ता है, उस जर्नल के हिसाब से। सो दिस हैज टू बी डिसाइडेड नॉट ओनली लेटर ऑन बट इट हैज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट ऑफ ऑल कि इस जर्नल को, इस पेपर को वेयर वी आर गोइंग टू पब्लिश इन अ ब्रॉड एरिया जर्नल, ब्रॉड एरिया स्पेसिफिक और स्पेसिफिक एरिया, दिस हैज टू बी डन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन go through format of papers, formatting of the paper is very important। जो उसमें स्टाइल दिया है, हर चीज का स्टाइल, लिखने का, पैराग्राफ्स का, हेडिंग्स का, सब हेडिंग्स का, that has to be given। और वो रेफरेंस का स्टाइल क्या है हमका लास्ट में साइड करने का, वो हर एक अलग है, that has to be seen। You should go through it and then accordingly you should mention your references in the reference list। And similarly, whenever you select a journal, a good journal or relevant journal for a research paper, it will have generally some journals have got a high impact factor. So generally such impact factor journals are to be selected, but it will depend on the quality of your research, quality of your data, quality of analysis of your data in your research paper. So these things are also very important. It doesn't mean that a journal with high impact factor will publish any kind of paper. It is not so. So paper should be journal, whatever you select the journal should be good and having, if it has got a very high impact factor, it means it will have a very good relevance in that case। अब सबमिट कैसे करते हैं पेपर को? दिस इज कॉल्ड द सबमिशन ऑफ अ पेपर। सो सबसे पहले व्हाट वी डू इट, वी रीड द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द पेपर केयरफुली, यानी हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। करेक्शंस अगर हैं तो विल हैव टू करेक्ट द मॉडिफिकेशंस करने हैं तो विल सेल्फ modify। Generally you should always send your paper to some expert before sending to some journal, before submitting to some journal you should give the paper or send the paper to the expert in that area or your colleague or expert in your department or in your university. You will have to you should ask him, please go through it, and if you find some mistake or some data irrelevant, or if you think something has to be added more or some relevance, some relevant information has to be given added in this paper, so that should be done। This is very important। So it will happen, इससे क्या होगा, you will not get bad comments in the research paper। जो reviewers करते हैं they will not give you bad comments and they will not ask you to revise your paper। एंड तो इसमें मैंने कहा था आपको ओपिनियन ऑफ कलीग्स एंड एक्सपर्ट्स आपको लेना है सबमिट करने से पेपर। दूसरी चीज, आज का जर्नल जनरली ऑनलाइन ही पेपर्स मांगते हैं, डाक से या कोरियर से कोई भी जर्नल आज के ज़माने में पेपर नहीं मांगता है। ऑल द रिसर्च पेपर्स आर सबमिटेड ऑनलाइन, उसकी साइट के ऊपर ऑनलाइन एड्रेस दिया हुआ होता है या ईमेल एड्रेस दिया रहता है या ऑनलाइन लिंक होता है सिलेक्शन सबमिशन का। सो दैट लिंक हैज टू बी यूज्ड फॉर सबमिटिंग द रिसर्च पेपर। अब एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिसर्च पेपर आपने बनाया है, अब आपने सोचा आपके दिमाग में आया जिस जर्नल में भेजना हो सकता है इसमें न छपे, तो ऐसा करते हैं कई लोग सोचते हैं कि मैं इसको 2 या 3 जर्नल में भेज देता हूँ एक साथ, एक या किसी दूसरे जर्नल में। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये वैसे भी गलत है। सब वो 2 जगह से एक्सेप्टेंस आ गया, गलती से छप गया तो ये डुप्लीकेशन ऑफ डेटा होगा और साइंटिफिक एथिक्स में या एकेडमिक एथिक्स के अगेंस्ट होगा। सो यू विल नॉट, अनलेस
किसी पेपर से रिजेक्ट हो गया आ जाता है कि वो कहते हैं नहीं हम इस पेपर को नहीं छाप सकते क्योंकि इसमें ये गलतियां हैं या कमियां हैं, या हम इसको नहीं छाप सकते, या अगर वो कहता है कि नहीं इसमें ये कमियां हैं जो आप दूर कर सकते हैं, या यू शुड गो फॉर रिविजन्स मेजर हो चाहे माइनर हो, यू कैन गो थ्रू देम. सो नेवर सबमिट ए पेपर टू simultaneously to more than one journal. Send it to only one journal जिसके हिसाब से आपने बनाया है. और ग्रामेटिक एरर्स, उसमें ग्रामेटिकल एरर्स जो है बिल्कुल नहीं होना चाहिए. इसके लिए जब मैंने आपसे कहा था कि जब मैंने आपको अभी बताया था कि कलीग या एक्सपर्ट्स के पास भेजने से बेटर है कि अगर आप ग्रामर में आपको लगता है कि यू आर नॉट perfect or fluent in the grammatical grammar composition, so it will be better you take the advice of some English expert या English language expert या English के टीचर से आप उसको रीड करवा सकते हैं, तो उसके सेंटेंसेस को वो सही कर देगा. आजकल दुनिया में स्प्रिंगर है या बहुत सारे एजेंसीज हैं या एकेडमिक पब्लिशर्स हैं, बहुत सारे एजेंसीज हैं, उन्होंने करेक्शन का जिम्मा लेते हैं, वो लोग पैसे चार्ज करते हैं इसके लिए, और उसी स्टाइल को जो आपने लिखा उसी पैराग्राफ को और तरह से सही कर देंगे, ग्रामर सही कर देंगे, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को और इफेक्टिव या अट्रैक्टिव बना देते हैं. तो इससे बेटर है कि आप यू कैन शो इट टू सम योर कलीग हु इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश कंपोजिशन, और टू अ टीचर ऑफ इंग्लिश टीचर ऑफ योर colleague who is in English department. He can also be we can say asked to correct the requested to correct the grammar or recorrect the sentences. What happens if you send a paper to some journal? So what happens here? The paper usually is if it is perfect, there are no mistakes. तो आपके पास comments आएंगे. The paper has been nicely written. Now we can say intelligently you have prepared the paper. You have written all the sections of the paper like results and discussion, methodology, references, experimental work. They have been written nicely. So what will happen? They will say this paper has been accepted for publication in the journal. तो journal का नाम है, वो नाम जो भी journal है उसमें लिखा रहता है. कभी-कभी क्या होता है, paper is sent for revision. Revision means the experts say, the editor and the reviewer of the journal, they say this paper has got following shortcomings, following we can say irregularities or following mistakes. So they send their comments and also they give their suggestions. Or some of the reviewers they also give their suggestions. So they point out the comments, they write the comments, and they also give their suggestions to review the paper. So these comments or suggestions or corrections may be either they may be major corrections or they may be minor corrections. So if the editor and the reviewer say that these references, these are so many corrections are required there, so this is called major revision. If there are very few corrections like grammatical mistakes, some sentences are there, some data is not we can say processed in logical sequence, so they will say you arrange the data or your material this way. तो ये minor corrections कहलाएंगे, minor revision कहलाएगा. So after that you will carefully you will read the comments, you will read the suggestions, and you will follow them, and you will make corrections in your paper. यानी you can modify your paper, or you can rewrite it or correct it or revise it accordingly, and then you can resubmit the paper in the same journal जहाँ से वो आया है. So generally जो पेपर suitable नहीं होते हैं they are always rejected. अब कोई पेपर अगर रिजेक्ट हो गया है, अब आप उसको किसी और जर्नल में भेज सकते हैं. अब जो दूसरे जर्नल में कैसे भेजेंगे, फिर वही प्रोसेस शुरू होगा. लिखने का तो ठीक है, यू हैव ऑलरेडी रिटन द मैटर, बट फॉर्मेटिंग हर जर्नल की अलग है, तो फॉर्मेटिंग उसकी चेंज होगी थोड़ा सा. ये रेफरेंस का स्टाइल और साइटेशन का स्टाइल वो वहाँ पर थोड़ा बहुत चेंज होता है. अब कोई भी पेपर छपता है, आजकल हम पढ़ते हैं साइटेशन इंडेक्स. हमारे साइंस में तो बहुत ज़्यादा होता है, साइटेशन इंडेक्सेस होते हैं. आजकल तो बीच में तो बहुत सारे इंडेक्सेस होते थे, अब तो एक एच इंडेक्स भी आजकल बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू है. इसके अलावा तो बहुत सारे इंडेक्सेस हैं जहाँ पर डेटाबेसेस हैं जहाँ पर योर पेपर कुड बी साइटेड या कुड बी इंडेक्स. सो कोई भी पेपर की अगर साइटेशन है, इंडेक्स है उसका. और एक चीज़ साइटेशन होता है पेपर का साइटेशन. सपोज आपने लिखा, कोई पेपर आपने लिखा, इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन सम जर्नल, और उस पेपर को some other authors are reading that particular paper, and then that paper they are citing your paper in their next
नेक्स्ट पब्लिकेशन और पेपर, इसको हम कहते हैं साइटेशन। तो आपके पेपर को कितने लोगों ने साइट किया है उस साल में या अब तक, उसका साइटेशन इंडेक्स कहलाता है। तो इसमें बहुत सारे डेटाबेसेस हैं, इंडेक्स हैं। साइंस की केस में तो ह्यूमैनिटीज़ के भी होंगे इसी तरह से, कुछ तो कॉमन ही है, ह्यूमैनिटीज़ के नहीं। तो साइंस साइटेशन इंडेक्स, बुक साइटेशन इंडेक्स अलग होते हैं, पेपर के अलग होते हैं। कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग के साइटेशन इंडेक्स अलग होते हैं। पेपर छपते हैं, कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग में आप पढ़ते हैं और एक्सेप्ट होते हैं छपने के लिए, फॉर्मेटिंग करते हैं उनकी, फिर वो छापते हैं, उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग। देन गूगल स्कॉलर सबसे इम्पोर्टेंट डेटाबेस है। अगर किसी के पब्लिकेशन छपे हैं तो आप अपने गूगल डेटाबेस में, गूगल स्कॉलर आप में जाइए, आप गूगल में, गूगल स्कॉलर में अपना नाम टाइप कीजिए और आपके साइटेशन वहाँ पे सब आ जाएंगे। स्कोपस साइटेशन इंडेक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का अपना एकेडमिक इंडेक्स है, साइट CRX है, क्रूज रेफरेंस, क्रूज रेफरेंस है, रिसर्च गेट है एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटाबेस, और वेब ऑफ साइंस। दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट citation indexes and citation databases। या जैसे मेनली वैसे citation इंडेक्स है, H इंडेक्स है, ये या आपका किसी भी पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर का टोटल इम्पैक्ट फैक्टर कितने हैं, वो इम्पोर्टेंट यहाँ पर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अ पेपर, यू शुड कीप इन योर माइंड व्हाट यू आर गोइंग टू डू एंड इट इज़ रेलिवेंट और नॉट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। अगर वो थियोरेटिकल है तो इज दिस थ्योरी और इज दिस आइडिया इज ऑफ यूज और रेलिवेंट टू दैट पर्टिकुलर एरिया, और इट इज एडिंग इंफॉर्मेशन or adding to the information, adding to the knowledge of in that particular subject. So this is very important. So there are so many things which has to be followed, and before publishing you have to rewrite, you have to read it, you have to recorrect it before final submission the paper, so that there are no corrections or no comments are obtained or received by you in the future. That's all. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Thank you. Sir. Thank you, sir. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. कोई queries हैं? Is there some? Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you all. Thank you all. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Ma'am, thank you. Should I leave? थैंक यू वेरी मच सर। आपने बहुत सारी जानकारियां हमें दी रिसर्च से संबंधित। सर आपने रिसर्च का जितना भी हमें ज्ञान दिया, टॉपिक सिलेक्शन, उसके बाद अपने उद्देश्यों का निर्धारण, उसके बाद डिजाइन, डाटा कलेक्शन और इंटरप्रिटेशन, एक एक स्टेप को सर आपने बहुत बारीकी से समझाया है। थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमें अपना जितना भी संचित ज्ञान है जीवन का आपने हमें दिया, बहुत बहुत आभारी हैं हम सर। और सर इतना पीसफुली ये सर लेक्चर लाइफ टाइम याद रहेगा। थैंक यू सो मच। ऐसा नहीं है बट इट कैन बी बहुत बारीकी नॉलेज, चाहे साइटेशन हो, पेपर का पेपर पब्लिकेशन हो, बिब्लियोग्राफी हो, बहुत ब्रीफ नॉलेज आपने दिया। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सर हमारे यहाँ जी सर हमारे बहुत से स्टूडेंट बॉटनी सब्जेक्ट से भी रिसर्च बॉटनी सब्जेक्ट से भी हमारे बहुत से रिसर्च स्कॉलर हैं। अगर उनकी कुछ क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। सुषमा प्रेजेंट है। सुषमा भट्ट। यस मैम। हाँ मैम, वो जब लेक्चर दिया था तो उस दौरान कवर हो गई थी वो। आवाज नहीं आ रही है मैम, आवाज नहीं आ रही है। बच्ची कह रही है कि जब मैंने लेक्चर के दौरान ही जो मेरे वो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया है। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू। इसका मतलब काफी अच्छा
ग्रेस्प करने की पावर है इनमें, अच्छी बात है। Yes. Yes, sir. Sir, I extend my generous thanks to you on behalf of my research scholar for taking time out of your busy schedule. I hope all our research scholars will surely get benefited with your guidance on how to write a research paper. You very impressively focused on the points that on the writing, research writing and publication, and how we have to select a journal, or what we should have it, what types of the parameter we should have consider over writing research paper, or before writing the research paper, how we have to select a topic and define the objective. That is very, very important. I heartedly show our thanks to you, sir, and hope our research scholar will surely get benefited with your guidance. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.